Today we will solve exercise 6.3, question number 20. So in question number 20, find the equation of the normal at the point am square comma am cube for the curve ay square is equal to x cube. So let's start. Solution. Given curve is ay square is equal to x cube, which is the first equation. Differentiating first with respect to x, we get a is the constant, and differentiate the y square, that is 2y, and differential of y dy by dx is equal to 3x square, or dy by dx is equal to 3x square upon 2ay. So dy by dx at am square am cube, 3x square, that is 3, x means am square, तो am square का whole square upon 2a, y means am cube, तो am cube. If you are simplifying, so then you get the 3 a square m पे power 4 upon 2a square m cube, or a square can be cancelled and 3 power of m can be cancelled, so then you get the 3 by 2 of m, or 3m by 2. Slope of the tangent is this much, therefore slope of tangent is equal to 3m upon 2. Now slope of normal at am square am cube is minus 2 upon 3m. As you know, m is equal to 1 upon minus dy by dx. By this formula, if you change 1 upon minus 3m by 2, then you get the minus 2 upon 3m, which is the slope of normal. This known as the slope of normal. So this is the slope of normal at am square am cube is minus 2 upon 3m. Now we have to find the equation of normal. Equation of normal is y minus y1, that is am cube, is equal to minus 2 upon 3m, which is the slope of the normal, x minus x1 am square. And if you are simplifying, take the cross multiplication, so then you can write 3my minus am power 4 is equal to minus 2x plus 2am square, or again you can write it 2x plus 3my minus am square is the common, to get the 2 plus 3m square is equal to 0. So which is the equation of normal. Equation of normal. Now question number 21. You find the equation of the normal to the curve
y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line, इतना मतलब कि एक कर्व है जिसपे लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस 14 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इस पे एक नॉर्मल है जो कि पैरेलल है इसके, और कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो ये कर्व का इक्वेशन एक मान लिया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ग्राफ ऑफ द कर्व, इस तरह से दे रखा है। और एक लाइन है जिसका इस लाइन के पैरेलल एक जो है नॉर्मल है, नॉर्मल दे रखा है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा कि लेट द रिक्वायर्ड नॉर्मल बी ड्रॉन एट द पॉइंट x1 y1। मान लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, x1 y1, दिस पॉइंट इज x1 y1। द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। differentiating both side with respect to x, we get dy by dx 3x square plus 2, तो dy by dx, therefore dy by dx at x1 y1, that is 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। सिंस द नॉर्मल यहाँ दे रखा है कि सिंस द नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, इट मीन्स कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा आपस में इक्वल। सिंस the normal at x1 y1 is parallel to the line x plus 14 y plus 4 is equal to 0, therefore slope of normal at x1 y1 is equal to slope of the line x plus 14 y plus 4 is equal to 0, and slope of the normal is, that is, minus 1 upon dy by dx at x1 y1 is equal to, and slope of the line is minus 1 upon 14, that is coefficient of x minus coefficient of x upon coefficient of y. From here this is the minus 1 upon dy by dx x1 is equal to minus 1 upon dy by minus coefficient of x upon coefficient of y. We get 1 upon 3 x1 के स्क्वायर प्लस 2 is equal to minus 1 upon 14. तो minus minus can be cancelled, therefore we get 3x1 square is equal to 3x1 square is equal to 14 minus 2, 14 minus 2, that is 12. It means x1 square is equal to 4, or x1 is equal to plus minus 2, x1 is equal to plus minus 2. Since x1 y1 lies on first
देयरफॉर y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6 when x1 is equal to 2 then y1 is equal to 2 का क्यूब प्लस 2 into 2 plus 6 we get the 18. 2 का क्यूब that is 8, 2 to 4, 8 4 12, 6 18. At when x is equal to x1 is equal to minus 2, तो then y1 is equal to minus 2 का क्यूब प्लस 2 into minus 2 plus 6, तो that will be the minus 8 minus 4 minus 12 or minus 12 plus 6, that is minus 6. Thus the coordinate of the points, thus the coordinate of point are 2, 18 and minus 2, minus 6. Therefore, equation of normal at 2, 18 is क्या अप्लाई करेंगे, y minus y1. y1 minus means 18. Slope of the normal is minus 1 upon 14. x minus x1 that is x minus 2. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 14y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 14 इंटू 18 दैट इज 252 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 और x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0. सबको एक तरफ लाएंगे. So this is the equation of the normal at 2, 18. Now again equation of normal at minus 2, minus 6. It means y minus y1 that is plus 6 minus 1 upon 14 x minus x1. So x that is x1 means minus 2. It means it will be the plus 2. If you are simplifying, so then you get the 14y plus 84 is equal to minus x minus 2, or this you can write it x plus 14y plus 86 is equal to 0. So this is the also the equation of the normal at minus 2, minus 6, and this is the equation of the normal at 2, 18. तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व के इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे. स्लोप जो हमारा स्लोप एट पॉइंट x1 y1 निकाल लेंगे, और ये जो है स्लोप जो दे रखा है यहाँ पे, किसी इज द नॉर्मल एट x1 y1 इज पैरेलल टू द लाइन, इतना, तो यानी कि जो है जिस लाइन के पैरेलल इक्वल है स्लोप का नॉर्मल और लाइन का स्लोप, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा. यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी और x1 की वैल्यू को हम कर्व में के इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी. और जब x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस x1. और वी आर सीइंग दैट कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन माइनस 1 अपॉन 14. यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है, माइनस 1 अपॉन 14. तो जो माइनस 1 अपॉन यहाँ पुट कर दिए गए, इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, जो है आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 23. प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1. ये कह रहा है कि हमको ये दिखाना है कि प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के राइट एंगल पे कट करता है. अब दो
कर्व राइट एंगल पे तब कट करेगा जब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो, -1 हो। और जिसमें ये भी यूज करना है कि इफ़ 8k² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलेंगे कि गिवन कर्व आर द गिवन कर्व इज x is equal to y², this is the first equation, and xy is equal to k, this is the second equation. पुटिंग अगर हम फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं यहाँ पे तो एक्स वाई की जगह पर के और x इक्वल टू y², यानी हम यहाँ x क्या पुट कर सकते हैं, y² पुट कर सकते हैं। तो यानी y³ बन जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट y इंटू y² इंटू y इज इक्वल टू k, दैट इज y³ इज इक्वल टू k। दिस implies that y इज इक्वल टू k पे पावर 1/3, y इज इक्वल टू k पावर 1/3। अब ऐसे हम x निकालेंगे तो x दे रखा है यहाँ पे कि x इक्वल टू किसके गिवन है, y², x इक्वल टू y²। तो फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू y², दैट इज k पे पावर 1/3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू k पे पावर 2/3। तो x इज इक्वल टू k पावर 2/3 एंड y इज इक्वल टू k पावर 1/3। Thus the point of intersection is क्या मिल जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब k पे पावर 2/3 एंड k पावर 1/3। डिफरेंस इतना एंड डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2dy/dx इज इक्वल टू 1 और dy/dx इज इक्वल टू 1/2 और y² को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको y² को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y आ जाएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू 1। तो dy/dx 1/2y एट, अब dy/dx किस पे निकालेंगे, एट k पे पावर 2/3 एंड k पावर 1/3, x1 y इन पे तो क्या हो जाएगा 2 और y की वैल्यू कितनी है, k पे पावर 1/3, तो k पावर 1/3। Therefore slope of tangent is equal to 1/2 k पे पावर 1/3। differentiating second with respect to x we get, यहाँ पे सेकंड कौन सा है, xy इक्वल टू k है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज dy/dx और प्लस y डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 एंड डिफरेंशियल ऑफ k इज 0। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -y/x एट अब dy/dx निकालेंगे किस पे, dy/dx एट x1 y1 पे मतलब k पे पावर 2/3 और k पे पावर 1/3। इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है k पे पावर
1/3 और x की वैल्यू कितनी है k पे पावर 2/3। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -1/k पे पावर 1/3 k पावर 1/3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दूसरे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1/k पे पावर 1/3, ये बनेगा। अब ये दे रखा है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो कर्व फर्स्ट और सेकंड किस पे कटता है, राइट एंगल पे कटता है। तो राइट एंगल कटता है मतलब क्या कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। नाउ द कर्व कट एट राइट एंगल, यहाँ करते हैं, नाउ द कर्व कट एट राइट एंगल, therefore m1 into m2 is equal to -1। और m1 कितना आया है, 1/2 k पे पावर 1/3, जो इक्वेशन थर्ड है। और m2 कितना आया है, -1/k पे पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। और अगर हम इसे यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1k पावर 1/3 इंटू k पावर 1/3। तो इसको मिल सकता है 1/2 k पे पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों तरफ को क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो 1/2 k पे पावर 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट 1/8, अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या लिखेंगे, k², 2 3 3 कट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 1। इट मीन्स 8k² इज इक्वल टू 1, जो कि हमको प्रूव करना था कि अगर राइट एंगल पे कट करता है तो कितना होना चाहिए, 8k² इज इक्वल टू 1। फिर से समझ लेते हैं एक बार। x यहाँ दे रखा है कि x इज इक्वल टू y² एक कर्व है, दूसरा कर्व है xy इज इक्वल टू k। कहते हैं कि अगर ये राइट एंगल पे कट करते हैं तो इतना होना चाहिए। और कब कट करेगा, अगर इतना राइट एंगल पे कट करता है तो कब, जब 8k² इज इक्वल टू 1 हो। तो यानी कि हम पहले इक्वेशन को निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, और दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन के x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी k के फॉर्म में। तो ये हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, k पावर 2/3 और k पावर 1/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, तो जो विच विल बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, एंड फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन सेकंड विच विल बी द स्लोप ऑफ द सेकंड कर्व। नाउ एज यू नो कि इफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से जो हम क्या करेंगे, पहले लाइन का स्लोप निकाला जो क्या कहलाएगा m1, और दूसरे लाइन का स्लोप निकाला जो क्या कहलाए m2, इसमें पुट कर दिया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने पे इतना आ गया, 2k पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। और अगर इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8k² इज इक्वल टू 1। तो ये जो कि हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट x0 y0। तो गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। differentiating first with respect to x, we get
2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y dy बाई डी एक्स दैट इज बी स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। नाउ dy बाई डी एक्स कौन सा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे x0 y0, तो x0 y0 पे स्लोप निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे x0 और ए स्क्वायर वाई जब क्या यूज करेंगे y0, तो dy बाई डी एक्स यानी कि इस कर्व का स्लोप आ गया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं क्या लगाते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लें देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए जीरो ए स्क्वायर वाई जीरो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 अप्लाई करेंगे y माइनस वाई जीरो वाई माइनस वाई वन दैट इज y0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0 x माइनस x0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने लिख सकते हैं इसको, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर वाई जीरो माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई जीरो के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स जीरो के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर मिलेगा कॉमन, तो बी स्क्वायर को यहाँ ले आए, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन मिले तो ए स्क्वायर को यहाँ ले आए, एक्सचेंज कर लिए। अब इस तरह से अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर जो बन रहा है यहाँ पे, और माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर। इसको मतलब इसको उधर ले गए, इज इक्वल टू एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और इतने की वैल्यू क्या दे रखी है, इतने की वैल्यू दे रखी है 1। यानी हम क्या ले सकते हैं इसको कि एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी चेंज हो जाएगा। तो अगर माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो निकालेंगे और x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स जीरो, अब वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस वाई जीरो, और यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लिया था बी जीरो एक्स अपॉन ए जीरो वाई, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ए जीरो वाई जीरो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि माइनस का ए जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो
multiplied by x minus x0. Now again simplify it, तो y minus y0 upon a स्क्वायर y0 पूरे को डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको अगर इधर लेके जाता है तो माइनस का प्लस बन जाएगा। क्या लिखेंगे, x माइनस x0 अपॉन बी स्क्वायर x0, बी स्क्वायर अपॉन x0 इज इक्वल टू 0। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now question number 25. In question number 25, find the equation of the tangent to the curve y is equal to under root 3x minus 2, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. So given curve is solution, given curve is y is equal to under root 3x minus 2. Now slope of, which is the first equation, so differentiating first with respect to x, we get dy by dx is equal to, अब इसको निकालेंगे dy by dx और 3x minus 2 की पावर 1/2, और दिस यू कैन गेट 1/2 3x पे पावर 3x minus 2 पे पावर minus 1/2 and dy by dx of 3x minus 2. तो देन यू गेट द dy by dx, ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 3x minus 2, और यहाँ पे 3x minus 2 का डिफरेंशियल क्या बनेगा 3, और -2 का डिफरेंशियल 0। तो इस तरह से आपको बनेगा 3 अपॉन, और दिस कैन राइट 3/2 अंडर रूट 3x minus 2, 3x minus 2। तो नाउ अब यहाँ पर हमको इक्वेशन फाइंड करना, तो हमें x1 y1 चाहिए। तो मान लेते कर्व पे कोई पॉइंट क्या है, x1 y1 है, तो dy by dx लेट मान लेंगे, लेट x1 y1 be the point of contact, be the point of contact of the tangent line parallel to the given line. So dy by dx at x1 y1, it means 3 upon twice under root 3x1 minus 2. तो ये dy by dx आ गया। Now since the tangent at x1 is parallel to the line, इतना, since the tangent at x1 y1 is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। इसके पैरेलल है, यानी कि दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो देयरफॉर dy by dx at x1 y1 is equal to slope of the line, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -2। तो कट सकता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना है dy by dx की वैल्यू, तो 3/2 अंडर रूट 3x minus 2 is equal to 2. Now
simplify this. If you are simplifying, so then you get the 2 to the 4. It means 3 is equal to 4 under root 3x1 minus 2, squaring on both sides. So 9, 16, 3x1 minus 2 or 9 by 16 plus 2 is equal to 3x1. So that is 60 to the 32, 32 or plus 9, 41. So 41 upon 16 is equal to 3x1. This implies that x1 is equal to 41 upon नीचे आ जाएगा 43, तो यानी कि 48. तो x1 is equal to 41 upon 48. नाउ x1 की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे कर्व के क्वेश्चन में? पुटिंग the value of x1 in first we get y1 is equal to under root 3 x1 41 upon 48 minus 2. Simplifying 316 ja and 41 minus 9 यानी कि अंडर रूट 41 माइनस 32 अपॉन 16. इट मीन्स 9 अपॉन 16 का अंडर रूट. देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. y1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. देयरफॉर the point of contact x1 that is 41 upon 48 or y1 means 3 by 4. The point of contact is this much. Now the equation of tangent y minus y1 that is 3 by 4 x divided by dx at x1 that is 2x minus x1 41 upon 48. Simplifying this, so it means take the LCM 4y minus 3 upon 4y minus 3 upon 4 is equal to 2x minus 2x लेते हैं और इसको एलसीएम ऐसे लेते हैं 48x माइनस 41 अपॉन 48. 2 से कटेगा ये तो 24 हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 48x ये वाला 48x आ गया माइनस y से 24y माइनस 24y इज इक्वल टू 23. So this is the equation of tangent, which is the equation of tangent. फिर से समझ लेते हैं कि कर्व का इक्वेशन दे रखा है और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना विच इज पैरेलल टू द लाइन. मतलब एक कर्व है, कर्व पे एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 मान लिया और इस पे एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल हमें टेंजेंट के इक्वेशन बताना है. तो वही ले लिया इसमें. मान लिया ऐसे चल रहा लाइन, तो क्या करेंगे कर्व सबसे पहले कर्व का इक्वेशन निकालेंगे. कर्व को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई dx निकालेंगे और मैंने मान लिया कि लेट x1 बी द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट है, तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे. स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 निकालेंगे. तो इसे पुट कर दिया, यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे कि जो है ये दे रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, यानी अगर पैरेलल टू द लाइन होगा तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो लाइन के स्लोप के इक्वल होगा
लाइन का स्लोप यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो दोनों का टेंजेंट यानी m1 इक्वल टू m2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, और x1 की वैल्यू हम कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। और जब x1 y1 आ जाएगा तो उस बेस पे हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला होता है y माइनस y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1, सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, कि द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। अच्छा, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 3 इतना x एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व क्या लिखा रखा है, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x दे रखा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x, 4x 3 cos x। अब हमको फाइंड करना है स्लोप, स्लोप dy बाई डी एक्स निकालना है किस पे, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, इट मीन्स 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 दैट इज 0, और 3 cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि 3, इट मीन्स 3। therefore part D is the correct answer, is the correct answer। Question number 27। In question number 27, the line y is equal to x plus 1 is it tangent to the curve इतना at the point। अच्छा, ये बताना है इसमें किस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे द लाइन इतना 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 1 2 2 1 1 माइनस 2 डी, ठीक 4 पॉइंट्स है, इस पर चेक करना है किस पे ये बनेगा। तो गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज y square is equal to 4x। now differentiating with respect to x, then you get the 2y dy by dx is equal to 4, or dy by dx is equal to 4 upon 2y, 4 upon 2y, that is 2 upon y। अब स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या रखा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज क्या बन जाएगा 1 1। तो नाउ 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, पुटिंग y इज इक्वल टू 2, पुटिंग y is equal to 2 in first, we get 2 का स्क्वायर is equal to 4x, this implies x is equal to 1, x equal to 1, therefore point of contact, is 1 comma 2, therefore correct option is A। So this is the solution of exercise 6.3 from question number 20 to 27।